آپ کی سلامتی ہو. خدا مجھے یسوع مسیح کا چہرہ آپ پر جلوہ گر ہو اور آپ کے گھرانے کو برکت بخشے. آج آپ کے سامنے چھوٹا سا خیال پیش کرتا ہوں. خیال اور سچائی. خیال کی بھی قیمت ہوتی ہے اور سچائی کی قیمت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ سچائی پر کیئر یعنی محبت، انصاف اور آزادی پائی جاتی ہے، لیکن خیال صرف ایک بنیادی ارادہ ہوتا ہے. سچائی کی قیمت یہ ہے کہ ایک عربی دوست مسلمان جس کی یہاں پر مکینک کی شاپ ہے اور اچھی بڑی شاپ ہے، ان کے پاس میرا ایک دوست گیا اور اس نے میرے دوست سے کہا آپ کو کرسمس مبارک ہو. میرے دوست نے اس سے جواب دیا آپ مسلمان ہوتے ہوئے مجھے کرسمس مبارک کہتے ہیں. تو اس نے کہا یا شیخ کل واحد، اے بندہ سب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ہیں، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، بدھ مت ہو. لیکن میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا واقعہ ہی سچ ہے؟ کیا واقعہ ہی سچ ہے کہ ایک ہے، سب ہم ایک ہیں اور ہم سب ایک ہی راستے پر چلتے ہیں، یا مختلف راستے اختیار کر کے تو ہماری منزل ایک بن جاتی ہے؟ یعنی ہم سب دوزخ سے بچ کر جنت کی طرف، کٹن راستے سے بچ کر بہشت کی طرف چلے جا رہے ہیں. مذہب ایسے ہی سکھاتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدا کے پاس جانے کا راستہ ایک ہی ہے اور اس سچائی کی قیمت کوئی اور پوری نہیں کر سکتا سوائے خدا خود پوری کرے. اس لیے سچے راہ کی تعلیم کی تلاش کرنا میرا اور آپ کا فرض اول بن جاتا ہے. سیاسی لحاظ سے یہ کہہ دینا بہت اچھا لگتا ہے اور پولیٹیکل کریکٹنس کا تو آج کل راج ہے. ملٹی کلچر، ڈائیورس ریلیجن، ڈائیورس فیتھ، ایون انٹر فیتھ ڈائیلاگ میں بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کو پرکھنا ہمارا فرض ہے. خدا قدوس فرماتے ہیں کہ ہر روح کا یقین مت کرو، روح کو آزماؤ اور دیکھو کہ سچائی اس میں کیا ہے. تو خیال اور سچائی میں فرق کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے. آئیے ہم پاک کلام یعنی بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے ایک نہایت قیمتی پورشن پیش کرتا ہوں، حصہ پیش کرتا ہوں جو کہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا اور ہم اسے پڑھیں. اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اس کا مطلب ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا. ہم کبھی بھی جھاڑیوں میں، اونٹ کٹاروں میں جا کر تو انگور نہیں ڈھونڈ سکتے، سیب نہیں ڈھونڈ سکتے، اچھے پھل نہیں ڈھونڈ سکتے. جھاڑیوں میں تو آپ کو کانٹے ہی ملیں گے، سوکھی ہوتی ہیں وہ، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ہر مذہب کو آزمانا ہمارا فرض ہے. پھر خدا یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا لوکا رسول کی انجیل کا 6 باب 34 سے 45 آیت میں کہ برا آدمی برے خزانے سے یعنی دل سے بری چیزیں نکالتا ہے اور اچھا خزانہ رکھنے والا
अच्छा आदमी, नेक आदमी अपने दिल से अच्छी चीजें निकालता है। ये तालीम मेरे प्यारों एक आईना है जिसमें खुदा का परतव, खुदा का अक्स, खुदा की सिफात, खास तौर पर खुदा एक है, खुदा मोहब्बत है, खुदा इंसाफ पसंद करता है। इसलिए खुदा राइटियस जज यानी ऐसा काजी है जो कि गुनाह की सजा भी देता है और गुनाह से बचने वालों को आजाद भी करता है। ये ही राह हक की तालीम है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर खुदा यीशु मसीह ही राह और हक और जिंदगी है तो फिर जो दूसरे नबी हैं जो अपने आप को कहते हैं हम सही तालीम देते हैं, हमने खुदा से सुनी, हमने फरिश्ते से सुनी, हमें इल्हाम नाज़िल हुआ, उनको परखना क्या आपका फर्ज नहीं है? क्या मेरा फर्ज नहीं है? यीशु मसीह एक बहुत बड़ा नबी था, नबी है, ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा मौजूज़े किए, मुर्दों को जिंदा किया, हजारों को खाना खिलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को चलाया। और इससे बढ़कर और क्या क्या खुदावंद यीशु मसीह ने ना किया जो किताब मुकद्दस में लिखा गया है और नहीं भी लिखा गया। फिर उसको लोग महरे इखलाकियात भी कहते हैं कि इखलाकियात की तालीम किसी और ने ऐसी नहीं दी जैसी रब्बाए खुदावंद यीशु मसीह ने दी। यानी रब्बी है, रब्बी का मतलब होता है उस्ताद है। ये सच्चाई है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई यही है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा इंसाफ करता है, खुदा खुद अपना कफारा देता है, खुदा आपकी जान बचाता है और हमेशा की जिंदगी की बातें सिर्फ उसी के पास है। जब पतरस रसूल से खुदा मसीह ने पूछा कि तू मुझे क्या कहता है और लोग क्या कहते हैं, और पतरस रसूल ने यही जवाब दिया कि लोग कहते हैं हाँ, या आप कोई नबी हो या नबियों में कोई एक हो या बहुत बड़े नबी हो, लेकिन तू है पतरस जिसका नाम शमाउन था, साइमन था, उसको नाम को चेंज करके उसको कायफा का नाम दिया, पतरस का नाम दिया, जिसका मतलब है कि वो चट्टान है और उसी चट्टान पर खुदावंद ने अपना चर्च रखा जिसका सर खुदा यीशु मसीह है। तो पतरस रसूल ने जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, ये बात तूने खुद अपने दिल से या दिमाग से नहीं की, बल्कि ये बात तुझे रूहुल कुद्दस ने अता की है। तो रूहुल कुद्दस ही मेरे और आपके दिल में काम करके तो हमें मसीह तक रसाई हमारी करता है, हमारी सहायता करता है, हमें गाइड करता है, हमें उसके हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाता है, क़ुव्वत अता फरमाता है, इरादा अता फरमाता है, मुआफी मांगने यानी तौबा करने की तौफीक देता है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, आए मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ यानी योक मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। कैसे ये बोझ हल्का हो सकता है, कैसे ये बोझ मुलायम हो सकता है? क्योंकि खुदा खुद रूहुल कुद्दस के जरिए आपके दिल में आकर रहता है, और जब आपके पास खुदा है, आपके दिल में खुदा है, तो फिर तो कोई चीज मुश्किल नहीं, हर चीज मुलायम हो जाती है। फिक्र हट जाते हैं क्योंकि अपना फिक्र आप उन पर डाल देते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, पहले खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो तो ये तमाम चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि जो ऊपर से आता है वो ऊपर की कहता है, और जो ऊपर से आया है वही आसमान पर चढ़ जाएगा। इसको आसान सलीस उर्दू में मैं पेश कर रहा हूं।
ताकि सुनने वाले की समझ में आ सके। जो जमीन से है वो जमीन की कहता है। जमीन की क्या बातें हैं? जमीन की बातें बुरी ख्वाहिशात हैं, अच्छी ख्वाहिशात भी हैं, ज़िनाकारी भी है, बुत परस्ती भी है, शहवत परस्ती भी है, और दूसरों की इज्जत ना करना भी है, दूसरों को अपने आप से कमतर समझना भी जमीनी बातें हैं, क्योंकि मगरूर का खुदा खुद मुकाबला करता है। खुदा वाहिद जो ऊपर से आया है वो मेरी और आपकी तलाश में है। वो आपके दिल पर दस्तक देता है और कहता है, ऐ अजीज अपने दिल का दर खोल दे, मैं अंदर आऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा। क्या बात है। आप जब किसी बड़े आदमी के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, और जो नबियों का नबी, जो खुदाए कदूस, जो खुदा का परतो, जो खुदा को जाहिर करने वाली वाहिद हस्ती है, जिसके मुतल्लिक लिखा गया है कि आखिरी जमाना में खुदा ने खुद अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कफारा देकर तो हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमाए, ताकि हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकें। है प्यारो, किसी मजहब को हम बुरा नहीं कहते और हमें कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब खुदा की मखलूक हैं, लेकिन ये हम पर फर्ज आता है कि हम अपने आप को परखें, अपने नॉलेज को परखें, और सिर्फ उसी जगह पर खड़े ना रहें जिस पर बाप दादा खड़े रहे। माँ बाप की इज्जत करना खुदा का हुक्म है, लेकिन इज्जत करने का मकसद ये नहीं कि आप उनके गलत रास्तों पर चलें। इज्जत करने का मकसद ये है कि ऑनर योर पेरेंट्स। मोहब्बत तो जानवर को भी अपने बच्चों से होती है और बच्चों को अपनी माँ और बाप से होती है, लेकिन ऑनर करना ही खुदा बाप को उसके हुक्मों को मान कर करना पड़ता है। खुदा फरमाता है, ज़बूर की किताब और उसका 34 बाब यानी 34 ज़बूर और उसकी 8 आयत में लिखा है, आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। मैंने आजमाया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कामिल हूं, लेकिन जब मैं गिरा तो उसने मुझे उठाया, जब मैं गिरा उसने मेरा हाथ थाम लिया, और जब मैं चल नहीं सकता तो वो मुझे अपनी गोद में लेकर मंजिल मकसूद की तरफ ले सकता है। इसलिए हम उसी पर भरोसा करेंगे। जैसे कि हम ये पुकार कर कह सकते हैं, ओ साडी बेड़ी पार लगाई, ओ साडी जिंद ते जान बचाई, यसु प्यारिया ते तारण हारिया, यसु प्यारिया ते तारण हारिया, तेरे बिना असी डूब जावांगे, तू नाल रवेंगा तर जावांगे, तू नाल रवेंगा तर जावांगे, साडी जिंद ते जान बचावी, यसु प्यारिया ते तारण हारिया, यसु प्यारिया तारण हारिया। आपको मुबारक हो अगर आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, नहीं तो इसी वक्त आप अपने घुटनों पे जाकर तो पुकार सकते हैं, यीशु मेरे दिल में आ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं खुद से अच्छे काम नहीं कर सकता, जब तू मुझे रूहुल कुद्दस की मामूरी देगा तो मैं तेरे पीछे चलने के काबिल हो जाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे, कसरत से बरकत दे। आमीन सुम आमीन।